Hello students, welcome to the class 12 Indian Economics, chapter 2 Indian Economy during 1950 and 1990. In this chapter we are going to evaluate the various achievements of the Indian government due to implementing various 5-year plans in the economy, under which today we will discuss the point evaluation of achievements of goals, that is, in case of agriculture. First, we will consider today about the achievements which have been achieved during 1950 and 1990 in our country by the implementation of various 5-year plans. As we know that India is an agro-based country and maximum population of the country earning their livelihood from the agricultural sector, and the agricultural sector on the eve of independence was too backward, that is, its production as well as productivity was too low. So, in consequence, after the independence, it was felt by the Indian government to make a development, make a growth in the agricultural sector, and how the development and growth can be made in the agricultural sector. It is decided through the 5-year plan, and budgets have been allocated to the agricultural sector to develop the agricultural sector so that the Indian people can get self-reliant in the production of food grain. On the eve of independence, India was not self-reliant on the production of food grain. The country was in need to import food grains from the foreign country for feeding its people. But after the independence, the efforts have been made, various efforts have been made by the Indian government to accelerate the productivity and production in the agricultural sector, and it is achieved in the year 1960-66. You may say in 1970 India was fully self-reliant in the production of food grain. Now, the point is that how in the agricultural sector the various development activities have been made in the various 5-year plans. It is through the solving the agricultural problems with the help of making reforms in the institutional sector and technical reforms and general reforms. There are 3 types of reforms that have been taken place due to the implementation of various plans in our country. That is, first 7 plans are responsible for the
growing trend of the agricultural sector in the economy, under which institutional reforms have been made. How these institutional reforms have been made in our country? That the first step has been taken by the Indian government to abolish the intermediaries from the land holdings in the agricultural sector, and second, implementing the Land Ceiling Act in the इकोनॉमी। देश में कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं थी उसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने 3 तरह के कदम उठाए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स और तीसरा जनरल रिफॉर्म्स, जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट में एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स की कदम उठाई और दूसरा लैंड सीलिंग एक्ट पारित किया। ये एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या होता है कि बिचौलियों को खत्म करना, यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जो जमींदार बिचौलिए का काम करते थे, फसल का अधिकांश भाग काश्तकार से ले लेते थे लगान के रूप में, वह खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और जिस पर एक्चुअल किसान खेती करते थे, जो एक्चुअल किसान थे, उनको लैंड ऑनरशिप दे दी गई। इससे काफ़ी किसानों में की आर्थिक स्थिति सुधर गई और वे अपनी पैदावार करते थे कृषि भूमि पर, उससे कुछ बचाते थे, उसे फिर अपनी कृषि में निवेश करते थे, जिससे दिन प्रतिदिन उत्पादकता और उत्पादन कृषि क्षेत्र में बढ़ती गई और किसानों की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरती गई। तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव एग्रीकल्चरल सेक्टर में भारत के देखने को मिला, जो भारतीय सरकार ने अपने देश में लागू किया था। इस तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई गई, लेकिन ये इंटरमीडिएट्स को एबॉलिश करने में बहुत सारी समस्याएं सरकार को फेस करनी पड़ी। बहुत सारी समस्याओं से गवर्नमेंट को निकलना पड़ा और इसमें जो लैंड ओनर्स थे वे एविक्शन का काम किए, चोरी छिपे जमीन को अपने नाम करवा लिए और वास्तविक किसान के हाथ में जमीन नहीं जा पाई। यह कुछ ड्रॉबैक इसमें रह गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके रोकथाम के लिए लैंड सीलिंग एक्ट ले आया, जिसमें कि एक आदमी के नाम पर कितनी जमीन रह सकती है मैक्सिमम उसको निर्धारित किया गया और उससे ज़्यादा जमीन जिसके पास थी उसे सीज कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उसमें भी कई तरह की समस्याएं सरकार को, गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी, जैसे कि लोग अपनी ज़मीन को अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिए और रिलेटिव्स के नाम पे कर देने से लोगों की ज़मीन वह बची रह गई। और आज भी लैंड सीलिंग के ऊपर विभिन्न पूरे देश में विभिन्न तरह के मुकदमे भारत के न्यायालय में लंबित हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। तो यह लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित हमारे देश में पश्चिम बंगाल और केरल स्टेट हुआ। बाकी स्टेट्स में यह एग्रीकल्चरल की जो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड लैंड सीलिंग एक्ट पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं पाया गया। इसमें कुछ खामियां आज भी बरकरार हैं। यह इसलिए कि हमारे कानून में लचीलापन हो जाने से, उसमें लूप होल होने की वजह से
जो काश्तकारी ज़मीन है वह लोग अपने नाम से रखने पर में सक्षम हुए और इस तरह से आज भी दूसरे स्टेटों में यह ज़मीन पर जो मालिकाना हक है वह किसी के पास नहीं है, सर छुपाने के लिए ज़मीन नहीं है और किसी के पास बेतहासा ज़मीन का भूखंड उनके नाम से है। अभी भी प्रयास जारी हैं, आगे यह न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि क्या करना है जो लंबित मुकदमे न्यायालय के समक्ष हैं। इसके बाद दूसरा आता है जो टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा जरूरी है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तकनीकी क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन देश में लाया गया। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? दैट इज a drastic change, improvement seen in the agricultural sector due to implementation of high yielding variety of seeds, HYV seeds। तो HYV seeds के उपयोग से, केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से, इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराने से, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनके उपयोग से देश की जो उत्पादकता है कृषि क्षेत्र में वह बढ़ गई। विशेष करके सबसे पहले हरित क्रांति व्हीट के संदर्भ में आई, गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो इससे जो गेहूं प्रोडक्शन करने वाले स्टेट से वे ज़्यादा लाभान्वित हुए। बाद में धान की खेती, पैडी कल्टीवेशन में भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गई और उसके बाद पैडी उत्पादन करने वाले जो स्टेट से वे भी इससे लाभान्वित हुए और धीरे धीरे आगे चल करके विभिन्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, कमर्शियल क्रॉप में भी और फूड क्रॉप में भी, डिफरेंट अनदर सीरियल्स में भी ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गए और देश की पैदावार कृषि क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई और देश 1970 के दशक तक आते आते पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के क्षेत्र में। सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन हमारा देश साबित हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी कई तरह की समस्याएं सामने आई और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अचीवमेंट्स में क्या क्या हमने देखा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया और इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता कृषि की दोनों ही बढ़ गई। और तीसरा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इससे कृषि आधारित उद्योग धंधे भी पनपने लगे और विभिन्न तरह के उद्योग धंधे हमारे देश में स्थापित हो गए। लोगों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन उन्नत होने लगी और रोजगार के समस्याएं दूर होने लगी। इंक्रीज इन इनकम, लोगों की आय बढ़ गई और सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर हो गए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति देखने को मिली। विभिन्न तरह के कृषि आधारित उद्योग धंधे हमारे देश में स्थापित होने लगे, जिससे लोगों की बेरोजगारी के साथ साथ आय के साधन भी बढ़ गए और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लग गई। उसके बाद इंक्रीज इन दी डिस्पैरिटी बिटवीन, इसकी कुछ समस्याएं भी सामने आई, शॉर्ट कमिंग्स भी हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। वे शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, क्या इससे नुकसान हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से? इंक्रीज इन दी डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर, जो छोटे किसान और बड़े किसान थे उनके अंदर जो है असमानता आ गई। जो बड़े किसान थे वो दिन प्रतिदिन और प्रॉस्पेरस हो गए और बड़े हो गए, और जो छोटे किसान जिनके पास कम जमीन थी वे निरंतर और गरीब हो गए। यह असमानता, देश में आर्थिक असमानता बढ़ गई लोगों के बीच में। दूसरा ड्रॉबैक है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग करने से पेस्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गया। फसलें
कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगी। इसके रोकथाम के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का रिसर्च एंड इनोवेशन एंड प्रोडक्शन शुरू हुआ इसकी रोकथाम के लिए। और तीसरा लिमिटेड क्रॉप्स में ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे, जैसे गेहूं और धान में भी ही केवल आए थे। बाद में बहुत समय के बाद दूसरे फसलों में यह हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई, यह ड्रॉबैक था। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस और क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिली ग्रीन रिवॉल्यूशन से। जो एग्रीकल्चरल एरिया थे देश के, वो स्टेट काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए, जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए, लेकिन बाकी स्टेट्स पीछे रह गए। तो ये क्षेत्रीय असमानता को भी इससे जूझना पड़ा देश को। और इसके लिए एक रिजल्ट जो सामने आया, आउटपुट स्मॉल फार्मर्स इक्वल द आउटपुट ऑन लार्ज फार्मर्स इन दी कोर्स ऑफ टाइम। और धीरे धीरे देश में जो स्मॉल फार्मर्स थे वे बड़े फार्मर्स के समानता करने लगे और देश प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगा, सेल्फ रिलायंट होने लगा। और गवर्नमेंट के द्वारा जो विभिन्न तरह की सब्सिडी एग्रीकल्चरल सेक्टर को दी जा रही थी, यह असमानता दूर करने के लिए लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन किसानों को दी जा रही थी। सब्सिडी दी जाने लगी फर्टिलाइजर उपयोग करने के लिए, विभिन्न तरह की। इससे किसान काफ़ी लाभान्वित हुए। लेकिन वर्तमान समय में सब्सिडी को रोकने के लिए एक डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सिडी का जो उपयोग है उसका फ़ायदा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वे उठा रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्ट उनके खाते में जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट पे करती है और किसानों को उससे कम फायदा हो रहा है। इसलिए सब्सिडी एक तरह से पूर्ण रूप से खत्म कर देनी चाहिए, ताकि जो पूंजीपति इंडस्ट्रियलिस्ट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वे इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सकें। इसलिए सब्सिडी के ऊपर एक राष्ट्रव्यापी डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट के पैसे की जो चोरी है उसको रोकी जा सके और गवर्नमेंट के ऊपर जो खर्च सब्सिडी देने की वजह से जो एक्सपेंडिचर का बर्डन है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए नेशन वाइड एक डिबेट कराने की आवश्यकता है, ताकि सब्सिडी को किस क्षेत्र में दिया जाए, किसको दिया जाए, यह एक अहम मुद्दा है कि सब्सिडी का फ़ायदा कोई दूसरे ना उठा सकें जो वास्तव में इसके हकदार हैं, लाभार्थी हैं। लाभ का अंश सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके वास्तविक पात्र हैं। अपात्र लोगों को इसका फ़ायदा सब्सिडी का ना मिले। इसके बाद सब्सिडी क्यों नहीं देना चाहिए, यह इसका मुख्य कारण है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, जो अदर रिफॉर्म्स हैं, उसमें आता है कि क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने समय समय पर किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराई, सस्ते दर पर लोन, सस्ते दर पर कर्ज, कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की ताकि वे आसानी से उन्हें कर्ज मिल सके। नाबार्ड की स्थापना हुई और नाबार्ड को भी गवर्नमेंट ने, नेशनल जो बैंक है उसे भी यह आदेश दिया कि वह किसानों को डायरेक्ट लोन दे, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज, देश में सिंचाई की सुविधा बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई गई। विभिन्न तरह के कैनाल्स, नहर, बोरिंग्स, ट्यूबवेल्स, ये सब मुहैया कराए गए पूरे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम और किसानों की जो पैदावार है उसे
एक जगह सही दाम पर बिकने के लिए, बेचने के लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह के उपक्रम लाए। गवर्नमेंट स्वयं जगह जगह देश के पूरे संपूर्ण देश में किसानों से जाकर के उनकी फसल का सही दाम देकर स्वयं परचेज करती थी और उससे गवर्नमेंट बफर स्टॉक अनाज का अपने देश में बनाने में सक्षम रही, जिसका उपयोग दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय, भूकंप के समय लोगों की सहायता करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उपयोग किया जाता है। और जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जो लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरित करके साबित किया, तो यह संभव हो सका इसी के माध्यम से कि गवर्नमेंट ने किसानों की जो पैदावार है उसे सही मूल्य पर खरीद कर अपने पास जमा करके रखा था, बफर स्टॉक बना करके, जिसका इस आपातकाल में काफी मदद मिली। उसके बाद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों की जो पैदावार है उसे गवर्नमेंट खरीदती है, ताकि जो बिचौलिए हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें बार्गेन ना कर सकें, कम दाम पर बेचने पर उन्हें मजबूर ना कर सकें। इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाई और जिससे कि किसानों की काफ़ी मदद हुई और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वह दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती चली गई। फिर भी इसके कई पक्ष और विपक्ष में प्रोज एंड कॉन्स इफेक्ट्स देखने को सामने आते हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए, लेकिन साथ साथ इसके नकारात्मक परिणाम भी देश में देखने को मिला, जो भारत सरकार समय समय पर कदम उठाकर दूर करती रहती है। रेस्ट इज वेल, थैंक यू।